Bismillahirrahmanirrahim. Today is the continuation of the lecture I delivered yesterday. It was a big topic, so I decided that to split the topic into two. So today we are going to discuss different variants of mycosis fungoides and the various treatment options. So let's start. The first is childhood mycosis fungoides. It comprises of 0.5 to 2.7% of the total reported cases. There is male predominance, and most of the cases are patch or plaques, and a few are hypopigmented forms. So patch and plaques are commonly the finding in children population. As far as the histology is concerned, changes are not much different from the usual mycosis fungoides. There will be parakeratosis. आपको मालूम है कि parakeratosis signifies the scaling. So if there is a parakeratosis, it means that there is scaling as well. And in addition to the parakeratosis, there is thoraciform hyperplasia. और आपको मैंने बताया था कि thoraciform hyperplasia plaque stage में होता है. Patch stage में thoraciform hyperplasia इतना नहीं है. And along with that, there would be epidermotropism with atypical lymphocytes. Then, bazat-e-khud, there is a variety of mycosis fungoides which is called as hypopigmented MF. So hypopigmented MF is mainly seen in dark-skinned individuals. It has an indolent course, but it has a good prognosis. The reason of mycosis, hypopigmented MF is melanocyte degeneration. कुछ नहीं. Is melanocyte degeneration. Histopathology, in addition to changes due to MF, there is marked pigmentary incontinence. और hypopigmented form है जो immunohistochemistry में change है वो ये कि CD8 positive cells की population increase हो जाती है. There is a little increase in CD8 positive T cell population. So if you see this kind of appearance, तो इस तरह का differential diagnosis हमने कुछ दिन पहले अपने clinical session में किया था कि इस तरह का hypopigmented patches पूरी body में बने हो तो हमारे क्या क्या differential हो सकते हैं. Starting from fungal infection to post-inflammatory hypopigmentation and other idiopathic causes of hypopigmentation. Lemmatous leprosy. हाँ, ये सारे Versicolor. So this variant is commonly misdiagnosed as superficial fungal infection, vitiligo or post-inflammatory hypopigmentation. आपको पता है कि सारी जो findings है ना, except the tumor stage, जो बहुत typical है किसी tumor की, वरना आमतौर पे patches, plaque stage, erythroderma, hypopigmented form, poikilodermatous form, ये सारी की सारी जो forms हैं MF की, वो commonly misdiagnosed होती हैं into several other inflammatory or non-inflammatory diagnoses. So you have to keep a very strong index of suspicion to pick up a case of mycosis fungoides from these kind of subtle manifestations. Achha, as far as the histology is concerned, इसकी जो histology hypopigmented की मैंने आपको बताया, पहले भी बताया, it is almost like the patch stage of MF. But in addition to that patch stage, pigmentary incontinence there are prominent होती है. Otherwise ये इसकी histology वही है जो patch stage MF की histology. Then granulomatous MF, ये भी एक अलग variety है. 4% of total cases of MF would fall into granulomatous MF. Clinically, it is similar to MF. Initially, it's thought to have a good prognosis, but recent reviews that more than 45% of these cases are associated with high-grade tumor. So now, अब consideration ये है कि अगर granulomas मिल रहे हैं mycosis fungoides में, तो it's not a good prognosis sign. There is intense dermal infiltrate, और उस infiltrate के दरमियान जिस तरह से granulomatous inflammation होती है, आपको pink areas नजर आते हैं among the blue nuclei, तो यहाँ पे pink areas नजर आएंगे. अब बाकी चीजें सब ठीक हैं, ग्रेनुलोमा की
आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ग्रैनुलोमा है या नहीं है, लेकिन जब आप लिम्फोसाइट्स को देखेंगे तो लिम्फोसाइट्स विल बी एबनॉर्मल इन शेप, और फिर जब उनकी हम इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री करेंगे तो मोस्ट ऑफ दीज लिम्फोसाइट्स विल बी टी सेल रादर देन बी सेल। तो ये वेल फॉर्म्ड ग्रैनुलोमास बने हुए हैं ग्रैनुलोमेटस एमएफ विद जाइंट सेल। So it would be confusing histologically with other granulomatous inflammation. लेकिन इस तरह का डिफरेंस जरूर होगा कि जो पेशेंट विल बी प्रेजेंटिंग एज अ पैच और प्लाग फॉर्म ऑफ माइकोसिस फंगोइडिस, वो आम ग्रैनुलोमा की तरह से शॉर्ट हिस्ट्री का और नोडुलर लीजन जिस तरह लिशमीनिया, जिस तरह डी फंगल, जिस तरह टीबी वैसे नहीं होगा। क्लिनिकली जो उसकी अपीयरेंस होगी वो एमएफ जैसी ही होगी, लेकिन हिस्टोलॉजिकली ग्रैनुलोमास मिलेंगे। और जब हिस्टोलॉजिकली आपको ग्रैनुलोमास मिलेंगे इस डर्मल इन्फिल्ट्रेट में, तो ये एक तरह का इंडिकेशन होगा कि दिस इज अ केस ऑफ पुअर प्रोग्नोसिस। इट इज नॉट अ गुड प्रोग्नोस्टिक साइन। तो जाहिर है आपको एटिपिकल लिम्फोज भी मिलेंगे और इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री भी कंपैटिबल होगी टू माइकोसिस फंगोइडिस। अच्छा, एक और फिनोमेना जो इन मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल में होगा वो लिम्फोफेगोसाइटोसिस या एम्पेरीपोलिसिस है। एम्पेरीपोलिसिस एक फिनोमेना है कि जिसमें मैक्रोफेजेस डिफरेंट सेल्स को एनगल्फ करते हैं। एम्पेरीपोलिसिस लिम्फोसाइट्स का भी हो सकता है, एम्पेरीपोलिसिस एरिथ्रोसाइट्स का भी हो सकता है, लेकिन इस केस में ग्रैनुलोमेटस एमएफ में एम्पेरीपोलिसिस जो है वो लिम्फोसाइट्स का है। तो वो जो जाइंट सेल्स ग्रैनुलोमा में पड़े होंगे उनके अंदर जिस तरह से यहाँ पे नजर आ रहा है लिम्फोसाइट्स को एनगल्फ किया हुआ, इस फिनोमेना इज कॉल्ड एज लिम्फोफेगोसाइटोसिस या एम्पेरीपोलिसिस। ग्रैनुलोमेटस स्लैक स्किन, पॉइंट इट आउट। क्या हुआ सर ये आप प्लीज पॉइंट आउट कर सकते हैं कि वेयर इज ये एम्पेरीपोलिसिस? एक जाइंट सेल है, न्यूक्लियाई इसके हिस्टोसिटिक न्यूक्लियाई हैं वेजिकुलर जो इसके पेरिफेरी में अरेंज्ड है, और इसके अंदर ये एक लिम्फोसाइट पड़ा, लिम्फोसाइट विद इन द मैक्रोफेज। सिमिलरली ये एक जाइंट सेल है, इसके हैप्हैज़र्ड अरेंज न्यूक्लियाई हैं और उसके अंदर ये लिम्फोसाइट पड़ा। इट इज लिम्फोफेगोसाइटोसिस एज द नेम सिग्निफाइज। जो जाइंट सेल्स हैं वो लिम्फोसाइट्स खा जाते हैं। इस फिनोमेना को एम्पेरीपोलिसिस भी कहते हैं, लेकिन एम्पेरीपोलिसिस एक जनरल टर्म है, लिम्फोफेगोसाइटोसिस एक स्पेसिफिक टर्म है सिग्निफाइंग द फेगोसाइटोसिस ऑफ लिम्फोसाइट्स। एम्पेरीपोलिसिस का मतलब है कोई भी सेल जाइंट सेल्स के अंदर घुस रहा है, तो वो एरिथ्रोसाइट भी हो सकता है, वो लिम्फोसाइट भी हो सकता है। क्लियर? यस सर, थैंक यू। Yes, sir. अच्छा, ग्रैनुलोमेटस स्लैक स्किन इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रैनुलोमेटस एमएफ। ग्रैनुलोमेटस एमएफ की क्लिनिकल अपीयरेंस नॉर्मल एमएफ से मुख्तलिफ नहीं होगी, सिर्फ हिस्टोलॉजी डिफरेंट होगी, लेकिन ग्रैनुलोमेटस स्लैक स्किन एक डिफरेंट प्रेजेंटेशन है। इट्स अ रेयर डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ पेंडुलस फोल्ड्स ऑफ लैक्स इरिथेमेटस स्किन। अब आप ये तस्वीर एक काफी कॉमन तस्वीर है और कई एटलसेस में और बुक्स में है। यहाँ पे आपको एक पेंडुलस फोल्ड ऑफ इरिथेमेटस स्किन है और इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये स्किन सिर्फ इरिथेमेटस नहीं है, ये इंड्यूरेटेड भी है, इसका एक सब्सटेंस लगता है। अब इंड्यूरेटेड का मतलब ये है कि कोई इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट डेंस पड़ा हुआ है डर्मस में या इवन सबक्यूटेनियस फैट में। Fewer than 40 document cases, rare condition. Develop slowly in middle-aged adults, typically flexural involvement. It consists of thick pendulous fold of skin. Condition appear to be caused by cutaneous elastolysis. अब pendulous जब भी skin hang करेगी fold में, तो definitely इसका मतलब ये है कि elasticity उस skin की खत्म हो गई है। जो skin की recoiling tendency है, मतलब skin को stretch करें वो recoil कर जाए, वो elastic fiber से होती है। जब elastic fibers टूट जाते हैं तो रिकॉइलिंग टेंडेंसी खत्म हो जाती है। हर वो कंडीशन के जिसके अंदर स्किन लैग्स और इन फोल्ड्स हैंग करेगी, उसका मतलब ये है कि वहां पे इलास्टिक फाइबर्स की डीजेनरेशन, जैसे सूडोजेंथोमा इलास्टिकम है, जैसे क्यूटस लेग्स है। तो सर ये बाइलेटरल होगा? नहीं,
ये कभी भी सिमेट्रिकल नहीं होते मैलिग्नेंसीज की। यहाँ पे ना अभी ये भी ठीक है सर। जिस तरह से अभी और भी आएगा, ये एसिमेट्रिकल है, ये एक ही जगह पे होगा। It is caused by cutaneous elastolysis associated with underlying lymphoma. और lymphoma में there is epidermotropism similar to seen as in MF. तो epidermis में MF की फीचर है, dermis के अंदर there will be extensive lymphocytic infiltrate with granulomatous granulomas and multinucleated giant cells. इसके अलावा there will be portions जहाँ पे elastolysis। अब यहाँ पे आपको देखें, अपने ना काइंडली अपने म्यूट करें अपने आप को, अपना ना खोलें प्लीज। ओके, तो जाइंट सेल्स, और उन जाइंट सेल्स के अंदर आप देखें यहाँ पे काफी सारे लिम्फोसाइट्स खाए हुए हैं जाइंट सेल। तो ये फिनोमेना लिम्फोफैगोसाइटोसिस का यहाँ पे भी डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है ग्रेनुलोमेटस स्लैग स्किन में। ये लिम्फोफैगोसाइटोसिस, ये जाइंट सेल के अपने न्यूक्लिया है पेरिफेरी में, और सेंटर में ना ये जाइंट सेल के न्यूक्लिया और ये लिम्फोसाइट्स इसने खाए हुए, ये जो छोटे छोटे नजर आ रहे हैं। No definitive treatment has yet been identified, but radiotherapy, retinoid surgery treatment तो अभी मैंने आपको डिस्कस करनी है आपको। तो सिरिंगोट्रोपिक माइकोसिस फंगोइडीज, सिरिंगोट्रोपिक का मतलब है माइकोसिस फंगोइडीज जो स्वेट कॉइल्स के गिर्द हो। This is characterized by a distinct papule present on the background of patch stage MF. Male female 10:1 पेरीफॉलिकुलर पैप्यूल्स हैं, क्योंकि ये इस वक्त जो इनफिल्ट्रेट है वो सराउंडिंग द स्वेट कॉइल्स है। अब ये स्वेट कॉइल्स हैं, और ये जो लिम्फोसिटिक इनफिल्ट्रेट है ये उन स्वेट कॉइल्स के गिर्द मौजूद है, जो एटिपिकल लिम्फोसिटिक इनफिल्ट्रेट। और इवन स्वेट कॉइल्स के अंदर भी लिम्फोसाइट्स इनफिल्ट्रेट कर रहे हैं। ये टेडपोल सा जो नजर आ रहा है स्ट्रक्चर, ये एक स्वेट कॉइल, और उसके अंदर लिम्फोसाइट्स भी घुसे हुए। वो कॉमन वैरायटी नहीं है जितनी कॉमन फॉलिकुलोट्रोपिक एमएफ है। फॉलिकुलोट्रोपिक एज द नेम सिग्निफाई कि इसकी ट्रोपिज्म जो है वो हेयर फॉलिकल की है। तो ये माइकोसिस फंगोइडीज हेयर फॉलिकल के गिर्द इनफिल्ट्रेट होगा, यूजुअली ऑन द लेग, may evolve into a very typical MF clinically significance is that, जो clinical significance क्या है folliculotropic की, कि क्योंकि हेयर फॉलिकल्स डर्मिस के अंदर डीप पड़े होते हैं, एपिडर्मिस के अंदर आमतौर पे जो पैच स्टेज या प्लाक स्टेज का MF है उसमें एपिडर्मोट्रोपिज्म होता है, और जो भी एटिपिकल लिम्फोसाइट्स होते हैं वो एपिडर्मिस के अंदर होते हैं मैक्सिमम। इसी वजह से पूवा थेरेपी, यूवीबी थेरेपी, क्योंकि ये यूवीबी थेरेपी या पूवा थेरेपी आपको मालूम है कि ये मैक्सिमम एपिडर्मिस को पेनिट्रेट करती है। तो पूवा थेरेपी इसीलिए इफेक्टिव है पैच और प्लाक स्टेज में। लेकिन फॉलिकोट्रोपिक एमएफ में और सिरिंगोट्रोपिक एमएफ में, दोनों में चूंकि एटिपिकल लिम्फोसाइट्स सराउंड कर रहे हैं हेयर फॉलिकल्स को या स्वेट कॉइल्स को, और दोनों स्ट्रक्चर्स डर्मिस के अंदर डीप पड़े हुए होते हैं, तो इसके ऊपर स्पेशली पूवा थेरेपी या यूवी थेरेपी इफेक्टिव नहीं होगी। ये अब हिस्टोलॉजी दिखाई जा रही है जिसमें हेयर फॉलिकल्स हैं और देयर इज सराउंडिंग इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट। पेरीफॉलिकुलर लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट बहुत सारी कंडीशन में होता है। हमने अपने हिस्टोपैथोलॉजी के लेक्चर में इनको डिस्कस भी किया था उन कंडीशंस को, लेकिन यहाँ पे जो लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट है पेरीफॉलिकुलर, ये एटिपिकल लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट, और इसके अलावा बाकी जो टिपिकल एमएफ की साइंस भी मौजूद हैं कि जिसमें एपिडर्मोट्रोपिज्म भी। Folliculotropic MF is different from follicular mucinosis, क्योंकि follicular mucinosis में, as the name signify, there is mucinous degeneration of hair follicle, जबकि folliculotropic MF is a variant of MF जिसमें MF के साथ साथ follicular infiltrate भी होगा lymphocytes, तो उसको हमें स्पेशल ट्रीट करना है क्योंकि वो lymphocytes deep into the dermis पड़े हुए। सिर्फ इतनी सिग्निफिकेंस है folliculotropic MF, जबकि उसकी क्लिनिकल अपीयरेंस में ज्यादा ये होगा
कि पैच और प्लाक स्टेज के अंदर आपको फॉलिकुलर लीजन्स मिलेंगे उसी पैचेस और प्लाक में। तो ये इसके अलावा और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं। जबकि फॉलिकुलर म्यूसिनोसिस की क्लिनिकल और हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंसेस फॉलिकुलर ट्रॉपिक एमएफ से बहुत डिफरेंट है। Characterized by boggy cutaneous plaques showing follicular prominence with histological evidence of mucinous degeneration of hair follicles that is often associated with atypical pilotropic T-cell infiltrate and clinical features of MF, pilotropic और folliculotropic. तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसकी क्लिनिकल अपीयरेंस ही डिफरेंट है. इट प्रेजेंट्स एज अ बॉगी स्वेलिंग विद फॉलिकुलर प्रोमिनेंस. बॉगी स्वेलिंग की डिफरेंशियल्स करेंगे हम, और हिस्टोलॉजी अभी हम आपको डिस्कस करते हैं. मेल प्रीडोमिनेंस टू प्रेजेंटेशन. एक तो ये कि इंड्यूरेटेड बॉल्ड पैच प्लाक ओवर हेड एंड नेक, सिंगल भी होता है, मल्टीपल भी होता है. दिस इज अ फीचर ऑफ बिनाइन फॉलिकुलर म्यूसिनोसिस. फॉलिकुलर म्यूसिनोसिस इन्फ्लेमेटरी भी हो सकता है और फॉलिकुलर म्यूसिनोसिस मैलिग्नेंट भी हो सकता है. जो इन्फ्लेमेटरी फॉलिकुलर म्यूसिनोसिस की जो वैरायटी है वो बिनाइन फॉलिकुलर म्यूसिनोसिस है, जिसके अंदर बॉगी स्वेलिंग तो होगी, जिसके अंदर हेयर लॉस तो होगा, जिसके अंदर फॉलिकुलर प्रोमिनेंसेस तो होंगी, लेकिन उसका प्रोग्नोसिस बुरा नहीं होगा. आप इन्फ्लेमेशन ठीक करेंगे वो ठीक हो जाएगा. लेकिन दूसरी वैरायटी है कि जिसमें there is group follicular papules with more generalized distribution, and this is more likely to have a lymphoma associated disease. Usually जो inflammatory follicular mucinosis है, it regresses in 2 years time. There are chronic relapses, initially benign, later develop lymphoma. तो ये भी देखा गया है कि inflammatory follicular mucinosis में in the longer run लिम्फोमा डेवलप हो सकता है. और अगर तो फॉलिकुलर म्यूसिनोसिस लिम्फोमा से एसोसिएटेड है, स्टार्ट ही लिम्फोमा के साथ है, इनिशियली भी लिम्फोमा है उसमें, तो इट कैरीज अ पुअर प्रोग्नोसिस. यंगर पेशेंट्स विल हैव इन्फ्लेमेटरी फॉर्म्स and but there is no satisfactory criteria for distinguish this from MF associated follicular mucinosis, suggesting that both represent MF. Clinically इसको differentiate करना मुश्किल है. सिर्फ histologically differentiate हो सकता है inflammatory और lymphoma associated follicular mucinosis. Sometime mucinuria भी होगा, mucin निकल भी रहा होगा उन follicular orifices के साथ. अब ये आपको एक फॉलिकुलर प्रोमिनेंसेस नजर आ रही हैं, एक इंड्यूरेटेड सी स्किन है, और ये जो अपीयरेंस है ये फॉलिकुलर म्यूसिनोसिस के अलावा लाइकन म्यूसिनोसिस की भी हो सकती है, क्योंकि म्यूसिनस जो डिजेनरेशंस होती हैं या म्यूसिनस जो डिजीज होती हैं इसमें म्यूसिन डिपोजिशन होती है, उसमें स्किन इज बॉगी इंड्यूरेटेड लाइक डो, जिस तरह से गीला आटा होता है, इस तरह की कंसिस्टेंसी की स्किन होती है. तो बाज दफा डिफ्यूज म्यूसिनोसिस होता है, उसमें डिफ्यूज चेंजेस आती हैं, लेकिन जो जिस तरह ये फॉलिकुलर म्यूसिनोसिस है इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में लाइकन म्यूसिनोसिस आएगा. लाइकन एमाइलोइडोसिस भी आ सकता है, लेकिन वो पिगमेंटेशन होती है उसके अंदर. ये एक टिपिकल फीचर है, ये जो हम कहते हैं ना बॉगी स्वेलिंग विद फॉलिकुलर ऑरिफिसेस एंड म्यूसिनोरिया. इन ऑरिफिसेस से म्यूसिन निकल रहा होगा, ये इन्वॉल्वमेंट पिना की भी है. तो बहुत कम कंडीशंस हैं कि जो इस कंडीशन को सिमुलेट करेंगी. अगर आप इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस करेंगे तो आपको इन्फ्लेमेटरी ग्रैनुलोमास वगैरह सोचने पड़ेंगे. लूपस वल्गैरिस ऐसा लग रहा है. वही मैंने कहा, इन्फ्लेमेटरी जो ग्रैनुलोमास है ना, लूपस वल्गैरिस हो गया, या कोई लीशमीनियासिस डिफ्यूज टाइप ऑफ कुटेनियस लीशमीनियासिस, या कोई इवन डीप माइकोसिस, इस किस्म के ना डिफरेंशियल सोचने पड़ेंगे, क्योंकि बड़ा थिक इंड्यूरेटेड सी एक लुक है. जो कैच है वो फॉलिकुलर प्रोमिनेंसेस है और वहां से निकलता हुआ म्यूसिनस मटीरियल. एलोपेशिया भी होगा अगर ये चेंजेस किसी हेयरी एरिया में. अब यहाँ पे आपको एक बॉगी स्वेलिंग है और उसके ऊपर फॉलिकुलर प्रोमिनेंसेस सी नजर आ रही है. अच्छा, ये एक टिपिकल हिस्टोलॉजी है फॉलिकुलर म्यूसिनोसिस की.
ये हेयर फॉलिकल हैं, इन फॉलिकल के एपिथेलियम के अंदर म्यूसिन आ गया है, ब्लूइश कलर का HND पे नजर आता है, और इसकी वजह से जो फॉलिकुलर एपिथेलियम है वो डिसरप्ट हो गया। अब ये भी सारे फॉलिकुलर एपिथेलियम है, लेकिन इसके अंदर सही मानों में म्यूसिन पड़ा हुआ है, और देयर इज सराउंडिंग एटिपिकल लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट। अब इसमें ये ब्लूइश टिंज जो है म्यूसिन का वो ज्यादा एप्रिशिएबल है। एल्शियन ब्लू कराएंगे तो ये ज्यादा वाजे हो जाए। बिनाइन फॉर्म आपको मालूम है कि पॉलीक्लोनल होती है, उसमें एक से ज्यादा टाइप के सेल्स मिल सकते हैं। अगर आपको फॉलिकुलर म्यूसिनोसिस के अंदर लिम्फो के अलावा इक्वल अमाउंट में हिस्टोसाइट्स और इओसिनोफिल भी मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो मोनोक्लोनल नहीं है, वो पॉलीक्लोनल डिजीज है, डिफरेंट सेल लीनिएज है, और वो इन्फेक्शन, वो जो डिजीज है वो इन्फ्लेमेटरी है, वो मेलिग्नेंट नहीं। अगर मेलिग्नेंट फॉलिकुलर म्यूसिनोसिस होगा तो उसमें एक तरह की पॉपुलेशन होगी, इवन इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में भी वो टी सेल होंगे, बी सेल भी नहीं। दिस इज एल्शियन ब्लू जो आमतौर पे म्यूसिन को हाईलाइट करता है। अच्छा, जो फॉलिकुलर म्यूसिनोसिस MF से रिलेटेड है, उसमें इन एडिशन टू पेरीफॉलिकुलर देयर इज डेंस लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट इन द डर्मस एज वेल, और आपको एटिपिकल लिम्फोसाइट, ये माइटोसिस नजर आ रहे हैं, एटिपिकल लिम्फोसाइट्स और माइटोसिस भी फॉलिकुलर एपिथेलियम के अंदर जाते हुए मिलेंगे। इम्यूनोफिनोटाइप क्या होती है फॉलिकुलर म्यूसिनोसिस? ट्यूमर सेल्स इन बोथ फॉलिकुलर म्यूसिनोसिस एंड इन फॉलिकुलट्रोपिक और पाइलोट्रोपिक MF आर CD3 पॉजिटिव, CD4 पॉजिटिव, CD8 नेगेटिव। ये वही इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री है जो MF की इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री है। CD30 पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लास्ट सेल्स में भी एसोसिएटेड विद पुअर प्रोग्नोसिस। ये बात कल बताइए कि ट्रांसफॉर्म्ड MF जो है, उसका मतलब है कि MF जो है उसके अंदर लार्ज सेल MF है या लार्ज सेल आ रहे हैं, तो CD30 पॉजिटिव, एंड CD30 पॉजिटिव MF इज ऑलवेज अ बैड प्रोग्नोस्टिक। T cell receptor clonal gene rearrangement can be detected in both MF associated follicular mucinosis and so called benign form of inflammatory follicular mucinosis. तो अगर तो T cell receptor gene rearrangement inflammatory follicular mucinosis में भी सिंगल क्लोन को आइडेंटिफाई करती है T सेल के, तब हम ये कह सकते हैं कि ये इन्फ्लेमेटरी भी एक्चुअली एक बिनाइन फॉर्म है MF, लेकिन जनरली इन्फ्लेमेटरी में नहीं होता। T cell receptor gene arrangement positive नहीं होती। It is accepted that follicular mucinosis represent the follicular or pilotropic variant of MF with mucinous degeneration of hair follicle, although the reason of mucin deposition is not currently known. The poor prognosis of follicular-tropic variant may relate to poor efficacy of skin-direct therapies because of the depth of associated T-cell infiltrate or currently unknown pathogenic difference. Unknown को छोड़ें, लेकिन मेन जो लॉजिकल कंक्लूजन है ना कि स्किन डायरेक्ट थेरेपी क्यों इफेक्टिव नहीं होती फॉलिकुलर में, वो यही है कि टी लिम्फोसाइट्स डीप इनटू द डर्मस पड़े हों। Disease specific survival rate is 81% at 5 years and 36% at 10. ट्रीटमेंट हम दोबारा डिस्कस करेंगे। MF associated follicular mucinosis treated with skin direct therapy. As for early stage of MF, but patient may require systemic treatment with interferon alpha or retinoid. रेडियोथेरेपी पुआ थेरेपी से बेहतर होती है, पुआ या UVB से, कि वो ज्यादा डीप पेनिट्रेट कर सकती है। टोटल स्किन इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी भी यूज की जा सकती है अगर हमें डीप पेनिट्रेशन चाहिए। अगर इन्फ्लेमेटरी फॉलिकुलर म्यूसिनोसिस है तो फिर डेप्सोन का रोल है, जो अगर हेयर फॉलिकल्स को परमानेंटली इफेक्ट कर दिया है और एलोपेशिया हो गया है तो फिर हेयर लॉस भी परमानेंट होगा, इवन जब वो ठीक भी हो जाए। बहुत रेयर वैरायटी है कि आपको माइकोसिस फंगोइडीज में ब्लिस्टर्स नजर आने शुरू हो जाए, इसको वेजिकोबुलस MF कहते हैं। और लेकिन जो ये वेजिकल्स हैं ये एक्जिमा जैसे वेजिकल्स, क्योंकि ये इंट्रा एपिडर्मल वेजिकल्स हैं विद सराउंडिंग स्पॉन्जियोसिस।
along with epidermotropism, और इन ब्लिस्टर्स के अंदर जो इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट है वो भी एमएफ वाला इन्फिल्ट्रेट है, एटिपिकल लिम्फोसिटिक, ये पोर्ट्रियर लाइक माइक्रोएप्स। देन वेजिटॉइड रेटिकुलोसिस और वार्नर कॉलेप डिजीज, इसको भी मैं अक्सर डिफरेंशियल में यूज करता हूं जब कभी वॉटर टीबी का डिफरेंशियल करना होता है। It is also a very rare variant of MF characterized by a solitary plaque which is persistent and commonly involves the acral site. A more generalized variant with multiple plaque at the sites has been described. और जो generalized variant है pagetoid reticulosis का, उसको Ketron Goodman disease कहते हैं, Ketron Goodman disease। और एक बात जो पैजिटॉइड रेटिकुलोसिस की डिफरेंट है बाकी एमएफ की वैरायटी से, वो ये है कि CD3 तो पॉजिटिव हो गई, लेकिन इसमें CD8 सेल्स CD4 से ज्यादा प्रोमिनेंट है। मेल प्रीडोमिनेंस 6-7 डेकेड, लिम्फ नोड में भी इन्वॉल्व, रिकरेंस नॉट अनकॉमन। ये एक बड़ा सा सॉलिटरी प्लाक है वेरुकस स्केली। हिस्टोलॉजी करें तो इसकी हिस्टोलॉजी प्लाक टाइप एमएफ की हिस्टोलॉजी है विद एपिडर्मोट्रोपिज्म एंड डेंस अपर डर्मल लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट, एपिडर्मोट्रोपिज्म विद एटिपिकल मोनोन्यूक्लियर सेल्स। अब इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, CD3 पॉजिटिव, CD45 पॉजिटिव, CD5 पॉजिटिव, CD30 पॉजिटिव, Ki-67 पॉजिटिव, तो ये सारे के सारे जो प्रोलिफरेशन के और जो खतरनाक वाले इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री मार्कर्स हैं वो पैजिटॉइड रेटिकुलोसिस में पॉजिटिव होते हैं। ये एग्जांपल है जिसमें CD4 नेगेटिव 8 पॉजिटिव है, और कॉम्बिनेशन भी होते हैं कि दोनों नेगेटिव हो 4 और 8 और दोनों 4 और 8 पॉजिटिव हो। लेकिन एक बात जहन में रख लें कि अब तक हमने जितनी एमएफ की वैरायटीज की हैं उनमें जो पैजिटॉइड रेटिकुलोसिस है इसके अंदर इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में CD8 सेल्स या तो CD4 के होगा ही नहीं और CD8 पॉजिटिव होंगे सारे के सारे टी लिम्फोसाइट्स ही, अगर या फिर अगर CD4 सेल्स होंगे भी तो CD8 की जो पॉपुलेशन है वो CD4 से ज्यादा होगी, जबकि नॉर्मली एमएफ में मैंने आपको बताया कि CD4 to CD8 रेशो 3:4 रेशो 1 होती है। Natural history of the lesion is very slow local extension with excellent prognosis. Successful remission and probable cure has been reported with both surgical excision and low-dose superficial radiotherapy. Now, एक बड़ी important variety आ रही है MF की जिसको हम erythrodermic cutaneous T-cell lymphoma कहते हैं। इस erythrodermic cutaneous T-cell lymphoma में हम 3 डिजीज को शामिल करते हैं, एक सेज़ेरे सिंड्रोम, एक erythroderma in the background of MF with no or minimal blood involvement, एक erythrodermic cutaneous lymphoma not otherwise specific जो हम T4 स्टेज है TNM क्लासिफिकेशन में, जिसको हम erythroderma कहते हैं, या जो अगर हम उसकी हम स्टेजिंग करें तो वो स्टेज बनती है इसकी स्टेज 3। तो ये वाली जो है ना erythrodermic MF, ये एक MF की वैरायटी है जिसमें पैच और प्लाक स्टेज से निकल के मोर देन 90% ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व हो गई है। लेकिन इस कंडीशन में लाजमी नहीं है कि एटिपिकल लिम्फोसाइट्स ब्लड के अंदर भी आए। तो erythrodermic MF इज नॉट नेसेसरली सेज़ेरे सिंड्रोम। तो इन चीजों को पहचाने के erythrodermic MF इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल MF, फर्क सिर्फ ये है कि स्किन की 90% इन्वॉल्वमेंट होगी, जबकि सेज़ेरे सिंड्रोम is erythroderma along with atypical lymphocytes in the blood. Sézary syndrome, the presence of clinical triad consisting of erythroderma, peripheral lymphadenopathy, and atypical mononuclear cells, which are called as Sézary cells, which comprise of 5% or more of peripheral blood lymphocytes. इसको ये B1 की कैटेगरी है। B1 और B2 को मैं आपको मजीद बताऊंगा। तो 3 चीजें, erythroderma, generalized peripheral lymphadenopathy और atypical lymphocyte mononuclear cells, which should be at least 5% of total blood lymphocytes.
इसको हम सिजेरे सिंड्रोम को हम टी सेल ल्यूकेमिया भी कह सकते हैं, क्योंकि ल्यूकेमिक फेज आपको मालूम है कि जब एबनॉर्मल सेल्स ब्लड के अंदर आते हैं तो उस कंडीशन को हम ल्यूकेमिया कहते हैं, चाहे वो किसी किस्म, चाहे माइलॉइड प्रिकर्सर के हों, चाहे ग्रैनुलोसाइट प्रिकर्सर के हों, वो जिस तरीके के प्रिकर्सर के हों उनको हम लिम्फोमा कहते हैं। तो चूंकि सिजेरे सिंड्रोम में भी एटिपिकल लिम्फोसाइट्स, एटिपिकल टी लिम्फोसाइट्स ब्लड में, इसलिए ये ल्यूकेमिक फेज है टी सेल लिम्फोमा। इंक्लूड वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया: एब्सोल्यूट सिजेरे काउंट ऑफ more than 1000 atypical cell per microliter or millimeter cube of blood. CD4 ratio CD8 is 10:1. Aberrant expression of pan T cell marker, मगर कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा. Increase clonal T cell and chromosomally abnormal T cell clone. तो ये इनके वन और मोर कोई भी एक क्राइटेरिया हो सकता है सिजेरे सिंड्रोम के अंदर. 3 तो क्लिनिकल क्राइटेरिया हो गए, और मतलब 2 क्लिनिकल क्राइटेरिया हो गए और एक इसका हेमाटोलॉजिकल क्राइटेरिया हो. उसके अंदर सिजेरे काउंट मोर देन 1000 है, CD4-10 रेशो बहुत ज्यादा होगी, टी सेल क्लोनल प्रोलिफरेशन होगी, क्रोमोसोमल एबनॉर्मल टी सेल होगी. TCR से भी कंफर्म हो सकता है, मेल प्रीडोमिनेंस है 5th और 7th डेकेड में कॉमन होता है. It's a rare occurrence. For every 25 cases of MF, we see one case of Sézary syndrome. It developed de novo but may be superimposed on advanced MF. मतलब खुद ब खुद पेशेंट Sézary syndrome में एंटर हो सकता है, और ये भी पॉसिबल है कि एक वेल एस्टेब्लिश MF enters into Sézary syndrome. It may be true leukemia, but TLC may be within the normal limit. अगर तो TLC हाई नहीं है, सिर्फ जो एबनॉर्मल टी सेल्स हैं वो लिम्फोसाइट्स को की एक मेजर पोर्शन बना रहे हैं, तो वो ल्यूकेमिया नहीं कहेंगे उसको. ल्यूकेमिया के लिए हमें TLC हाई होना भी जरूरी है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट और लिम्फोसाइट काउंट इंक्रीज होना जरूरी है. एक फीचर जो MF में इतना नहीं होता प्लूराइटिस का, सिजेरे सिंड्रोम में बहुत ज्यादा होता है. तो सिजेरे सिंड्रोम कैन बी क्लासिफाइड as those disorders which have extreme pruritus as one of the symptoms. Infiltrative erythroderma, generalized edema, scaling, palmoplantar keratoderma, then hepatosplenomegaly and lymphadenopathy. ये सारे के सारे फीचर्स सिजेरे सिंड्रोम के फीचर्स हैं. एक्सक्यूज मी सर, सर ये समझ नहीं आया कि डी नोवो या हो सकता है या फिर एडवांस्ड MF से, क्योंकि इन दोनों का तो ओरिजिन जो है वो अलग हो रहा है. MF जो है वो रेजिडेंट मेमोरी स्किन सेल से निकल रहा है, और सेजेरी जो है वो सेंट्रल सेल से निकलता है. वो कहाँ से आएंगे सेंट्रल सेल? सर होंगे तो नाइव टी सेल जब एक्टिवेट होगा, लेकिन जब हम उनका क्लोन करेंगे तो वो ओरिजिन अलग नहीं आएगा. अलग आएगा तो पता चल जाएगा ना कि उसका क्लोन कहाँ है. लेकिन देखो, जो मेमोरी टी सेल हैं वो तो आपके बोन मैरो के अंदर पड़े हुए हैं ना. वो तो चाहे वो मेमोरी टी सेल, एक मैंने आपको MF की इटियोलॉजी बताई थी कि इट्स वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ MF जो हम समझते हैं, वो परसिस्टेंस ऑफ सम एंटीजन है. वो एंटीजन फंगल भी हो सकती है, बैक्टीरियल भी हो सकती है, वायरल भी हो सकती है, जिसके नतीजे में मेमोरी टी सेल मुसलसल रिक्रूट हो रहे होते हैं और स्किन के अंदर जा रहे होते हैं. तो सिजेरे सिंड्रोम में भी यही है कि वही मेमोरी टी सेल मुसलसल एक्टिवेट हो रहे हैं और एबनॉर्मल क्लोन्स बना रहे हैं, एबनॉर्मल सेल्स बना रहे हैं. तो बेसिकली तो सर मतलब अगर एर्थोडर्मिक MF है तो इट कैन प्रोग्रेस टू सिजेरी सिंड्रोम, जा सकता है. मतलब देखो, जो थ्योरी है और जो एक्सप्लेनेशन है और जो टेक्स्ट बुक में लिखा है वो तो यही है कि सिजेरे सिंड्रोम डी नोवो भी हो सकता है, और सिजेरे सिंड्रोम MF6 एज अ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है MF के बाद. ठीक, राइट सर. अच्छा. पेशेंट विद जनरलाइज्ड एक्सफोलिएटिव एर्थोडर्मा. अब जब एक्सफोलिएटिव एर्थोडर्मा होगा तो आपको मालूम है हाई आउटपुट हार्ट फेलियर हो सकता है. तो ये एक साइड इफेक्ट MF का सिजेरे का हो सकता है. इसके अलावा एक्ट्रोपियन, स्कैल्प एलोपेशिया,
पामोप्लांटर हाइपरकेराटोसिस का जिक्र कर दिया और सब अंगुल हाइपरकेराटोसिस। तो आपको ऐसे पेशेंट को जो इस जनरलाइज्ड एर्थोड्रामा के साथ प्रेजेंट कर रहा है, आपको बड़े समझदारी के साथ उसको एवेल्युएट करना है कि वो सिजेरे सिंड्रोम में तो नहीं है। एक जो फीचर जो क्लू आपको मिलेगा वो एक्सट्रीम डिग्री ऑफ प्लूराइटिस का मिलेगा, वरना तो एर्थोड्रामा बहुत सारी और कंडीशन में हो सकता है, लेकिन एक स्कीन प्लूराइटिस का मिलेगा। वैसे भी एर्थोड्रामा के क्लिनिकल एग्जामिनेशन में लाजमी है कि आपने लिम्फ नोड्स का और विसरास का एग्जामिनेशन करना, ये लाजमी है, ये समझ लीजिए एर्थोड्रामा में करना ही करना, चाहे वो एक्जिमा का एर्थोड्रामा है चाहे वो सोराइसिस का एर्थोड्रामा, ताकि आपको ये चीज मिस ना हो जाए। NCI का मैं मतलब भूल गया हूँ। पब्लिश्ड अ रिवाइज्ड स्टेजिंग सिस्टम फॉर बी सेल इन्वॉल्वमेंट फॉर ब्लड इन्वॉल्वमेंट इन सिजेरे सिंड्रोम। एक स्टेज है B0 कि जिसमें 250 एबनॉर्मल सेल से सिजेरे सेल से कम होते हैं पर मिलीमीटर क्यूब या माइक्रोलीटर में। B1 में 250 से लेस देन 1000 और B2 में मोर देन 1000। This figure has prognostic significance in Sézary syndrome. An absolute Sézary cell count of over 1000 Sézary cell per millimeter cube या microliter एक ही चीज है। ये जो है ना, ये has been recently proposed as a criterion for diagnosis of Sézary syndrome, which more closely represents the B2 rating for peripheral blood involvement. Other prognostic indicators. Good associated, generally associated with poor prognosis. Sézary syndrome, poor prognosis. Most die of opportunistic infection. Median survival 45 to 48 months. Those with visceral involvement fare more badly. The indicators are lymph node status, high absolute Sézary cell count, fast evolution of disease, high serum LDH, high beta-2 microglobulin levels. तो ये lymph nodes कितने involved हैं, absolute Sézary count more than 1000, rapid evolution of the disease, high serum LDH और high beta-2 microglobulin, ये सारे के सारे prognostic indicators हैं Sézary syndrome के। ल्यूनाइन फेसिस के डिफरेंशियल डायग्नोसिस में भी Sézary syndrome आता है, क्योंकि सारी की सारी स्किन इन्फिल्ट्रेट हो रही है और थिकेंड हो रही है। हाइपरकेराटोसिस ऑफ पाम सोल्स, ये वाली पिक्चर किसी भी हाइपरकेराटोटिक डिसऑर्डर्स की पिक्चर हो सकती है, लेकिन और चीजें भी हमें देखनी है। तो आपको एटिपिकल सेल्स ढूंढने हैं, उनका साइज भी जो है ना, स्मॉल Sézary सेल 8 to 11 माइक्रोमीटर और लार्ज जो है ना मोर देन 14 माइक्रोलीटर। स्किन में हाइपरकेराटोसिस, एकेंथोसिस और डेंस इन्फिल्ट्रेट है लिम्फोसाइट्स का, मैच्योर और एटिपिकल लिम्फोसाइट्स का। एपिडर्मोट्रोपिज्म भी हो रहा होता है, डर्मस के अंदर भी इन्फिल्ट्रेट होता है, पोर्टियर माइक्रो एब्सेस भी मिलेंगे। तो जो स्किन की हिस्टोलॉजी है वो हिस्टोलॉजी पैच या प्लाक स्टेज के MF से डिफरेंट नहीं हो। CD2 पॉजिटिव, CD3 पॉजिटिव, CD4 पॉजिटिव, CD5 पॉजिटिव, CD7 नेगेटिव, CD8 नेगेटिव, ये सारी जो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री है ये MF वाली इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। अब हम ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे ओवरऑल तमाम MF के और Sézary सिंड्रोम या और वेरिएंट है उनका। अभी तक जितना मैंने बताया उसमें कोई अगर सवाल है तो कर लें, ताकि फिर ट्रीटमेंट पे अगला ब्रेक ट्रीटमेंट पे लगाएं। जो अभी वेरिएंट्स थे माइकोसिस फंगोइडिस के, उसके बारे में कोई क्वेश्चन है या मैंने कोई चीज क्लियर नहीं की तो वो मुझे बताएं। सब क्लियर है तो आगे चलते हैं फिर। हाँ जी आयशा। सर ये जो म्यूसिनोरिया होता है तो ये स्किन के ऊपर क्रस्ट के फॉर्म में आता है, ड्राइड क्रस्ट के फॉर्म में? म्यूसिन देखो ना, अगर आपने कभी म्यूसिनस सिस्ट देखी हो, कभी आपने ये जो लिप के ऊपर म्यूसिनस सिस्ट देखी हो,
तो आपको महसूस होगा कि ये ना जो देखा होगा आपने कि म्यूसिनस मटेरियल एक ना गाढ़ा सा चिकना सा एक मटेरियल होता है जो निकल रहा होता है, तो आपको उन फॉलिकल्स के अंदर से वो म्यूसिनस सा मटेरियल बाहर आता हुआ नजर आएगा। इसको कहेंगे म्यूसिनोरिया। क्रस्ट का कोई सवाल नहीं, वो म्यूसिनस मटेरियल है, वो सीरम नहीं है, वो थिक लिक्विडी मटेरियल है। जेलेटिनस। ठीक है सर, ओके। अच्छा, स्टिकी मटेरियल। स्टिकी सा मटेरियल। Sir, how would we differentiate? Sir, how would we हाँ। differentiate stringotropic and folliculotropic MF clinically? जो देखो, जो भी इन्वॉल्वमेंट श्रिंगोट्रॉपिक होती है ना, स्वेट ग्लैंड्स की जगह की इन्वॉल्वमेंट, वो पेरीफॉलिकुलर होती है, और जो फॉलिकुलोट्रॉपिक होगा या फॉलिकुलर म्यूसिनोसिस होगा वो फॉलिकुलर इन्वॉल्वमेंट। Okay. जो पेप्यूल निकला हुआ है स्किन के ऊपर, अगर फॉर एग्जांपल आपको 10 पेप्यूल नजर आ रहे हैं स्किन पे, आप हर एक को इंडिविजुअली देखेंगे कि उनमें से कितने पेप्यूल हैं जिनके अंदर से बाल बाहर निकल रहे हैं। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, उसमें से कितने पेप्यूल हैं जिनके अंदर से बाल बाहर Okay. निकल रहा है। That अगर would be तो folliculotropic. अगर तो बाल बाहर निकल रहा है Yes, तो इसका sir. मतलब है कि फॉलिकुलोट्रॉपिक है। अगर तो उन पेप्यूल्स का हेयर फॉलिकल से कोई रिलेशन नहीं है, हेयर फॉलिकल्स इंटैक्ट हैं और पेप्यूल्स हेयर फॉलिकल के इर्द गिर्द पड़े हैं, तो इसका मतलब है कि वो पेरीफॉलिकुलर है। जो पेरीफॉलिकुलर पेप्यूल्स होते हैं वो श्रिंगोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मिलिएरिया रूब्रा। मिलिएरिया रूब्रा जो होता है ना, प्रिकली हीट, उसमें आपको फॉलिकुलर पेप्यूल्स और पस्ट्यूल्स मिलते हैं, लेकिन वो पेरीफॉलिकुलर पेप्यूल्स और पस्ट्यूल मिलते हैं, और हेयर फॉलिकल्स के अंदर कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो इन्वॉल्वमेंट स्वेट कॉइल्स की है। चॉइस ऑफ थेरेपी, इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेज ऑफ डिजीज। ठीक है। It depends upon the stage of disease, general condition of the patient, and age of patient. जिन्होंने अपना माइक खोला था वो काइंडली अपना माइक बंद कर दें। स्ट्रॉन्ग एक्टिंग ये करी हमें। जरा जिन्होंने माइक खोला था मैं उनको बंद करना कह रहा हूँ। अच्छा जी, चलो। It depends upon the stage of disease, general condition, and age of patients. Large portion of patients with MF are frail, elderly, and likely to succumb either to general medical problems or to the side effect of over-enthusiastic therapy. तो ये जो over-enthusiastic therapy है ना, इसको हमने avoid करना है. Consensus that therapy in MF is aimed at the disease palliation rather than aggressive intent to cure. ये बात भी ध्यान में रखनी है, हमने ना इतना एग्रेसिव थेरेपी नहीं करनी कि पेशेंट थेरेपी की साइड इफेक्ट से मर जाए, क्योंकि ज्यादातर एमएफ का इंडोलेंट कोर्स है। जो एमएफ एग्रेसिव है वो या तो ट्यूमर स्टेज का है या वो एमएफ सिजेरियन सिंड्रोम है। द करंट कंसेंसस इज दैट पेशेंट विद अर्ली स्टेज डिजीज शुड रिसीव स्किन डायरेक्ट थेरेपीज, वो थेरेपी जिसमें सिर्फ स्किन पे इफेक्ट हो रहा है। Systemic therapies are reserved for those with early stage disease resistant to skin direct therapy or advanced disease. मेरे ख्याल में बड़ी ऑब्वियस सी ये स्लाइड है। एक तो ये कि ओवर एंथुजियास्टिक नहीं होना, और दूसरा ये कि पेशेंट का पेलिएटिव ट्रीटमेंट एम करना है, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट एम नहीं करना। अर्ली फेज में स्किन डायरेक्ट थेरेपी करनी है। सिस्टेमिक थेरेपी उस वक्त करनी है कि स्किन डायरेक्ट थेरेपी फेल हो जाए या एडवांस डिजीज। अब स्किन डायरेक्ट थेरेपीज कौन कौन सी हैं? टिपिकली इट स्टार्ट्स फ्रॉम टॉपिकल स्टीरॉयड, ये हमारा फर्स्ट ट्रीटमेंट है, और जनरली एमएफ के मरीज जो हमारी ओपीडीओ में फिर रहे हैं वो यही ट्रीटमेंट लेके गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि हम उनको एक्जिमास डायग्नोज करके बैठे हुए हैं। कभी एयरबॉर्न डर्मेटाइटिस कह देते हैं, कभी कोई कॉन्टैक्ट रिएक्शन टू डस्ट कह देते हैं, कभी सोप कह देते हैं, कभी हम एस्टियोटोटिक एक्जिमा कह देते हैं। तो हम ये इस किस्म के लेबल दे रहे हैं उन लोगों को जो हमारी ओपीडीओ में आए जा रहे हैं। मैंने आपको पिछली दफा कहा था कि हर वो बाबा या बाबी जो 1 साल से आपके पास आ रहा है अनडायग्नोज्ड विद जनरलाइज्ड स्केली इरिथेमेटस रैश, अगर आप उन सब की बायोप्सियां करेंगे तो मैं श्योरिटी से कह सकता हूं कि तकरीबन 10 में से 2-3 जरूर एमएफ निकले, इतना कम। तो हम एक तरह से उनको ट्रीट कर रहे हैं एडुकेटली विद टॉपिकल स्टीरॉयड।
क्योंकि जो पैच स्टेज है एमएफ की उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी कोई ऑल्टर नहीं। तो सिंपल इमोलिएंट्स विद मॉडरेट पोटेंसी टॉपिकल स्टेरॉइड। पोटेंट स्टेरॉइड कैन प्रोड्यूस अ क्लिनिकल रिस्पॉन्स ऑल्दो दिस इज शॉर्ट। देन टॉपिकल कीमोथेरेपी, दो तरह की हैं टॉपिकल कीमोथेरेपी। एक है नाइट्रोजन मस्टर्ड जिसको हम मेक्लोरइथामीन भी कहते हैं। टॉपिकल मेक्लोरइथामीन or nitrogen mustard is prepared in a form of 0.01 to 0.02% aqueous solution जो नॉर्मल सेलाइन में तैयार किया जाएगा, या ऑइंटमेंट। इसकी परसेंटेज मेरे ख्याल है 10 to 20% है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। तो इसको हम यूज कर सकते हैं इन सुपरफिशियल डिजीज विद गुड रिस्पॉन्स रेट जो 50 to 80% है 1A में, 26 to 68 1B में है, और 2A में जो आपकी जिसमें लिफ नोड्स भी हैं उसमें 61% है। Aqueous solution is relatively unstable and ointment base more commonly cause irritancy or allergic dermatitis. Aqueous solution का इशू ये है कि वो अनस्टेबल है और ointment effective है, लेकिन वो irritant contact dermatitis कर सकता है। This is not indicated in pregnancy, or there are rare case reports of non-melanoma skin cancers with topical nitrogen mustard. There is no consensus on whether mecloethamine should be applied to individual lesion or the whole skin. क्योंकि ये तो पता नहीं कि होता है कि और जगहों पे जहाँ पे नजर नहीं आई वहाँ पे भी एमएफ हो, डेली और ट्वाइस वीकली, कंटिन्यूड आफ्टर क्लिनिकल रिमिशन और नॉट। तो ये सारे के सारे इसलिए ये डाउट्स हैं क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम अभी तक नहीं हुआ, जबकि ये थेरेपी एक जमाने से इस्तेमाल हो रही। तो इसलिए देयर इज नो कंसेंसस कि हमने सिर्फ अफेक्टेड एरिया पे लगाना है या फुल बॉडी पे लगाना है, डेली लगाना है या हफ्ते में 2 दफा लगाना है, या एक दफा रिमिशन आने के बाद कंटिन्यू करना है टू प्रिवेंट द रिकरेंस या स्टॉप कर देना। तो दोनों चीजें हो सकती। सर नाइट्रोजन मस्टर्ड है अवेलेबल पाकिस्तान में? मेरा ख्याल है, मैंने यूज कभी नहीं किया, हमने जनरली यूज कभी नहीं किया। उसकी मेन रीजन यही होती है कि इसकी ना कॉन्टैक्ट इरिटेंसी बहुत ज्यादा है। तो और दूसरा ये कि हमारे पास आम तौर पे क्योंकि यूवीबी और फोटोथेरेपी मशीन्स यूनिट मौजूद होते हैं, तो हमें कभी, मुझे तो एटलीस्ट कभी ऐसी जरूरत महसूस नहीं हुई कि मैं नाइट्रोजन मस्टर्ड ढूंढूं। और जो जितना स्टेज, जब तक पेशेंट पैच और प्लाक स्टेज में है वो हमारे कंट्रोल में। जब पेशेंट ट्यूमर स्टेज में आता है तो उसको तो मैंने वैसे ही रेफर करना है रेडियोथेरेपी के लिए टू रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। ये भी एक टॉपिकल कीमोथेरेपी है, कारमस्टीन, जिसको BCNU भी कहा जाता है। ठीक है सर। ऑल्टरनेट डे ट्रीटमेंट, इसका ऑल्टरनेट डे ट्रीटमेंट है 10 मिलीग्राम BCNU in 60 ml dilute alcohol 95% or 20 to 40% ointment. Again, hypersensitivity occur but less often than nitrogen mustard. All patients should have blood CP weekly and treatment is normally given for 2 to 4 weeks. ज़्यादा अरसे देने से myelosuppression हो सकती है। Maintenance therapy is contraindicated since this drug can be absorbed and cause myelosuppression. इसलिए इसको सिर्फ रिमिशन इंड्यूस करने के लिए यूज किया जाएगा, मेंटेन करने के लिए नहीं। देन आगे टॉपिकल रेटिनॉइड्स। नोवेल रेटिनॉइड 1% बेक्सारोटीन which is named as Targretin gel has been approved by FDA for topical therapy in stage 1 MF patients who are resistant to or intolerant to other topical therapies. Open uncontrolled studies response rate is 63%. Median response time is 20 weeks. Median duration of response is 99 weeks. बहुत ज़्यादा अच्छा effective response आता है topical retinoid से। हमारी एक कंपनी क्रिस्टोलाइट बना रही है, लेकिन इसकी अवेलेबिलिटी कम होती है और एक्सपेंसिव पड़ेगा पूरी बॉडी पे लगाने का के लिए ये ऑइंटमेंट। अदरवाइज अगर एक्सपेंसेस की इशू नहीं है तो इट हैज अ गुड रिस्पॉन्स। टॉपिकल प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड, नाम तो लिखा हुआ है लेकिन इतना आपने पढ़ लिया कि देयर इज नो बेनिफिट ऑफ यूजिंग टॉपिकल प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड।
तो इसको तो हो गया ख़त्म। अब आ गई वो थेरेपी कि जो डर्माटोलॉजी डिपार्टमेंट में मोस्ट कॉमनली की जाती है इन केस ऑफ CTCL, दैट इज पूवा और UVB थेरेपी। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो पूवा की हमेशा एक ज़्यादा एडवांटेज है UVB से इन ट्रीटमेंट ऑफ CTCL। लेकिन एक बात जो अब अनफॉर्चुनेट ये है कि मैक्सिमम जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास पूवा के बजाय UVB के अपरेटस हैं, लेकिन UVB की भी रिस्पांस इतना कोई बुरा नहीं है, मतलब काफ़ी एडुकेट रिस्पांस है, 19-20 का ही फ़र्क होगा पूवा के मुकाबले। पूवा के साथ आपको मालूम है टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, जो UVB में बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे ना UVB थेरेपी किसी को स्टार्ट करते हुए ज़रा सी भी परेशानी नहीं होती, जबकि पूवा स्टार्ट करते हुए काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ा करती थी, टेस्ट कराने पड़ते थे। अच्छा, पूवा अगर हम करेंगे तो इट वुड बी 2 to 3 थेरेपीज पर वीक। Response rate is 79 to 88% in 1A and 52 to 59 in 1B disease. Flexural site, which is called as sanctuary sites, often fail to respond completely. Of course, क्योंकि मरीज आमतौर पे फ्लेक्चर्स को खोल के तो नहीं थेरेपी लगाता. There is no significant response in tumor and in erythrodermic stage. So, PUVA photochemotherapy is not an indicated option in erythrodermic या tumor form of MF. और मेंटेनेंस थेरेपी इज रेयरली इफेक्टिव. जब पेशेंट ठीक हो जाए तो ये करने की जरूरत नहीं है कि आप हर हफ्ते आगे पूवा लगाते चले जाएं. ये करने की कोई खास जरूरत नहीं. दोबारा जरूरत. Many patients will inevitably have a high cumulative dose of UVA. UVA की cumulative dose भी कैलकुलेट करनी पड़ती है. UVB में ये मसला भी नहीं. Effort should be made to restrict the total PUVA dose to less than 2,200 treatments or total of 1,200 joules per centimeter square. ये जो फिगर्स हैं, ये फिगर्स और कंडीशन जिसमें पूवा यूज होती है उस पर भी एप्लीकेबल है. इन फिगर्स को याद रखें. आपसे कोई एग्जामिनर पूछे कि कितनी आपके पास मैक्सिमम लिमिट है, तो हम ये कह सकते हैं कि 200 ट्रीटमेंट्स या 1200 जाउल पर सेंटीमीटर स्क्वायर की टोटल क्यूमुलेटिव डोज. ब्रॉड बैंड और नैरो बैंड. अब तो आपको पता है ब्रॉड बैंड और नैरो बैंड का ये 311 नैनोमीटर है वेवलेंथ. अब तो यूजली डर्मा डिपार्टमेंट्स हैज दिस काइंड ऑफ phototherapy lamp. Or high dose UVA1 phototherapy has also been used. It has been no adequate comparative studies of different phototherapy regimes in CTCL, but narrowband UVB therapy may be an effective option in patients with patches as opposed to plaques. एक तरह से ये कह दिया कि पूवा से इतनी इफेक्टिव नहीं है UVB और पैच स्टेज में ज्यादा इफेक्टिव है प्लाक स्टेज के मुकाबले. लेकिन इवन देन हम प्लाक स्टेज में भी UVB थेरेपी को यूज करते हैं. Now comes the radiotherapy. MF and other CTCL are radio-sensitive malignancies. This is very important. And individual thick plaques or tumors can be treated successfully with low-dose superficial radiotherapy, often administered in several fractions, 2 to 3 fractions of 400 centigrade 80 to 120 kilovolt. इसका मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन आपके लिए इतना जरूर पता होना चाहिए कि ट्यूमर स्टेज MF का ट्रीटमेंट इज विथ और थिक प्लाक, इसका ट्रीटमेंट है रेडियोथेरेपी. फिर हमें फोटोथेरेपी के बजाय रेडियोथेरेपी के लिए पेशेंट को रेडियो ऑन्कोलॉजिस्ट को रेफर करना है. ऑफन यूज्ड विद अदर थेरेप्यूटिक मोडालिटीज. पूवा के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं. अब एक और ट्रीटमेंट, total skin electron beam therapy. Different field arrangement have been used as an attempt to treat the whole skin uniformly to a depth of 1 centimeter. अब ये दोनों थेरेपी जो है रेडियोथेरेपी या टोटल स्किन इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी, ये दोनों थेरेपी डीप ट्यूमर्स के लिए हैं. There is complete response of 96% in stage 1A, 1B, 2A. But disease relapse rate are very high, indicating that this approach is not curative even in early stage disease. वैसे भी early stage disease में हम इसको use करते भी नहीं हैं. In stage 2B,
कंप्लीट रिस्पॉन्स इज लेस कॉमन, बट इर्थोडर्मिक स्टेज, तो इसका इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी का जो मेन रोल है वो इर्थोडर्मिक एमएफ में है, सिजेरे में है, कि जिसमें रिस्पॉन्स रेट 60% तक है। स्किन डोजेस है, greater doses are associated with higher complete response. It is recommended that total skin electron beam therapy should be reserved for those who fail first and second line therapy. और इसको ना आपने इर्थोडर्मिक के लिए रिजर्व रखना है इस थेरेपी को। एडवर्स इफेक्ट्स, टेम्पररी एलोपेशिया, टेलेंजिक्टेसिया, स्किन मैलिग्नेंसीज, और वैसे रेयर है क्योंकि लिमिटेड सेंटर्स हैं जो ये ऑफर कर रहे हैं। Is usually given only once in a lifetime. Several reports have documented patients who have received 2 or 3 courses. So it is not at all a common way of treatment in MF. Then अब skin direct therapy से हटके अब हम systemic therapy पे आ गए, और skin direct therapy is reserved for stage 1-2 disease. ये जो है systemic therapy, ये stage 3-4 disease. Different form of immunotherapies have been evaluated to enhance anti-tumor host immune response by promoting cytotoxic T cell production and Th1 cytokine response. हमने cytotoxic T cell की प्रोडक्शन इंक्रीज करके हमने ट्यूमर सेल्स को मारना है, और इसमें जो स्टडीज हैं वो इंटरफ्यूरॉन अल्फा 3 million unit 3 times weekly for 36 weekly to 36 million units per day के साथ 3 टाइम से इतने ज्यादा डोज हो सकती है। ओवरऑल रिस्पॉन्स इज 45 to 74%। इसके अलावा इंटरल्यूकिन 12 और इंटरफ्यूरॉन गैमा, ये सारी की सारी जो इम्यूनोथेरेपीज हैं, these can be effective treatment options in CTCL. साइक्लोस्पोरिन क्योंकि टी सेल डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट करती है, उनको कम करती है, उसको यूज किया गया है CTCL में, लेकिन पता ये चला कि साइक्लोस्पोरिन देने से देयर इज अ रैपिड डिजीज प्रोग्रेशन, तो इसलिए अब साइक्लोस्पोरिन की यूज CTCL में खत्म हो गई है कंप्लीट। Oral retinoids have been used as a single agent or in combination with interferons and PUVA. तो एसिट्रोटिन को मैं भी यूज करता हूँ, इसको रीपूवा कहते हैं, रेटिनॉइड विद पूवा, ये यूवीबी थेरेपी के कॉम्बिनेशन में। बेक्सेरोटीन का जिक्र हमने कर दिया, ये टॉपिकल रेटिनॉइड्स, और ये रेटिनॉइड एक्स रिसेप्टर को इफेक्ट करता है एंड प्रोमोट्स एपोप्टोसिस एंड इनहिबिट सेल पॉपुलेशन। तो हम ओरल रेटिनॉइड भी दे सकते हैं ट्रीटमेंट ऑफ अर्ली स्टेज एमएफ। देन कॉम्बिनेशन थेरेपीज, कॉम्बिनेशन थेरेपी क्या है? इंटरफ्यूरॉन अल्फा को रेटिनॉइड से कंबाइन कर दी है, पूवा को इंटरफ्यूरॉन अल्फा से कंबाइन कर दिया, इंटरफ्यूरॉन अल्फा और एसिट्रिटिन को कंबाइन कर दिया, और पूवा इंटरफ्यूरॉन अल्फा को कंबाइन कर लिया। तो मतलब ये मुख्तलिफ जो कॉम्बिनेशंस हैं, ये उस वक्त आप ट्राई करेंगे कि जब आपको एक या दो ट्रीटमेंट ऑप्शन से फायदा हासिल नहीं हो रहा। ये रीपूवा है, एसिट्रिटिन एंड पूवा, इसका 72 to 73% इसका क्योर रेट है, रिस्पॉन्स रेट है। सिस्टेमिक कीमोथेरेपी, अब ये बात पहला लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एमएफ एंड सीज़ेरे सिंड्रोम आर रिलेटिवली कीमो रेजिस्टेंट ट्यूमर्स। कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी रिजीम्स इंक्लूडिंग साइक्लोफॉस्फेमाइड, डॉक्सोरुबिसिन, विनक्रिस्टीन एंड प्रेडनिसोलोन, टॉप थेरेपी जो बाकी लिम्फोमा में दी जाती है, उसका रिस्पॉन्स रेट 38% है, with median survival 5 to 41 months. अर्ली स्टेज में तो कोई तुकी नहीं बनती कीमोथेरेपी देने की। सिंगल एजेंट कीमोथेरेपी विद oral chlorambucil 4 to 6 cycles for 2 weeks every 28 days have been shown to produce clinical response in 2B and 2B से लेके 4B disease तक। तो जो सिंगल एजेंट chlorambucil is a preferable chemotherapeutic agent which is used in stage 2B से लेके 3 or 4B. Other agents including methotrexate, etoposide, and intravenous use of purine analog 2-deoxycoformycin और 2-deoxyadenosine का भी
रोल है सिंगल एजेंट। तो ये सारे के सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हम यूज कर सकते हैं 2B से लेके 4B तक। मीथोट्रेक्सेट सिंगल वीकली डोज ऑफ 5 to 125 मिलीग्राम प्रोड्यूस कंप्लीट रिस्पॉन्स रेट। मीथोट्रेक्सेट का यूज करना इसलिए एडवांटेजेस है कि हमें इसको काफी यूज किया हुआ होता है। लाइपोसोमल डॉक्सीरिबोसिन और जेमसीटेबीन भी इस्तेमाल की जाती है। मतलब मुख्तलिफ थेरेप्यूटिक ऑप्शंस हैं। कंबाइंड चॉप थेरेपी भी हो सकती है, सिंगल एजेंट भी हो सकता है। एलोजेनिक स्टेम सेल और बोन मैरो ट्रांसप्लांट tried in few patients but with encouraging results, and the associated mortality but is associated with mortality because of this is a very serious procedure। तो इसलिए इसको जब इतना बेनिफिट नहीं है तो इसको बहुत ज्यादा जस्टिफाई नहीं किया जा सकता इस प्रोसीजर को। फोटोफोरेसिस का एक प्रोसीजर है कि जो हम MF में करते हैं, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरल फोटोफोरेसिस। इसमें यह किया जाता है कि पेशेंट को कुआ ओरल सोरलिन खिलाया जाता है कि जैसे कि हम कुआ में खिलाते हैं। इट इज फॉलोड बाय एक्स वीवो कलेक्शन ऑफ एनरिच्ड बफी कोड प्रिपरेशन यूजिंग अ सेल सेपरेटर। उसके बाद उसकी जो ब्लड है उसको इस बफी एनरिच कोड से गुजारा जाता है। These leukocytes are then passed through a thin polythene tubing with exposure to UVA। अब ये जो UVA का एक्सपोजर है ये इन विट्रो हो रहा है, एंड देन ये जो ट्रीटेड ल्यूकोसाइट्स हैं ये ब्लड में वापस आ जाते हैं। इस थेरेपी को 2 सक्सेसिव डेज किया जाता है और 2 साइकिल्स को रिपीट किया जाता है मंथली और फोर्टनाइटली। A proportion of UVA exposed tumor lymphocytes undergoes apoptosis। तो ये जो थेरेपी है फोटोफोरेसिस की या एक्स्ट्राकॉर्पोरल फोटोफोरेसिस की, it has been licensed by FDA, but there is no randomized study to clarify that ECP has an impact on overall survival। Few toxin therapies, नाम की हद तक याद रखना है। डेनील्यूकिन, डिफ्टीटॉक्स, a fusion protein है capable of inhibiting the protein synthesis in tumor cells, those tumor cells which express high level of interleukin-2। FDA ने इस डेनील्यूकिन को अप्रूव किया हुआ है इन रिकरेंट और रेजिस्टेंट CT सेल में। Adverse effects include fever, chill, myalgia, nausea, vomiting, and increased liver transaminase levels। Monoclonal antibody treatment, humanized anti-CD4 monoclonal antibody and CD5 antibody has also been used in stage 3 or erythrodermic mycosis fungoides or Sézary syndrome। Histone deacetylase inhibitor, this is again a novel drug, बिल्कुल नई डेवलपमेंट है। फेज 1 और 2 ट्रायल जा रहे हैं। इसका जो ड्रग यूज की जा रही है उसका नाम है वोरिनोस्टैट, जिसको SAHA के नाम से सेल किया जा रहा है। वोरिनोस्टैट बहुत हाई रिस्पांस रेट नहीं है, लेकिन ये वो कंडीशन एजेंट्स हैं जो स्टेज 4 और 3 डिजीज में दिए जाते हैं जहां पे वैसे ही प्रोग्नोसिस और लाइफ एक्सपेक्टेंसी पुअर। proteasome inhibitors। So that's all as far as the treatment is concerned। तो treatment का basically summarize ये किया है कि जो skin direct therapies हैं, these are usually reserved for the stage 1 और stage 2 disease, stage 1 and stage 2A disease। और skin direct therapy topical भी हो सकती है, जिसमें topical steroids हैं, topical retinoids हैं, और टॉपिकल कीमोथेरेपीज हैं, नाइट्रोजन मस्टर्ड और कार्मस्टीन, या फिर हमारी स्किन डिपार्टमेंट्स की कुवा या UVB थेरेपीज हैं, या फिर रेडियो ऑन्कोलॉजिस्ट की रेडियोथेरेपी है, या फिर इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी है। तो ये जो सारी ट्रीटमेंट्स हैं, ये सारी की सारी ट्रीटमेंट्स आर इफेक्टिव फॉर स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 1A, 1B एंड 2A। जब डिजीज स्टेज 2B में आती है, जब स्टेज 3 और 4 में आती है, तब हमें सिस्टेमिक एजेंट्स यूज करने पड़ते हैं। सिस्टेमिक एजेंट्स मुख्तलिफ तरह के हैं। सिस्टेमिक एजेंट्स ओरल रेटिनॉइड्स भी हैं, सिस्टेमिक एजेंट्स इम्यूनोथेरेपीज भी हैं, सिस्टेमिक एजेंट्स
हमारे कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स भी हैं, नई थेरेपीज भी हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, टॉक्सिन थेरेपीज हैं, हाइड्रोक्सी डी एसिटिलेज हैं. It all depends upon the experience of the treating physician, the response, the type of patient, जिसको पिछली ट्रीटमेंट से क्या रिस्पॉन्स आया है, एज कितनी है, मतलब बहुत सारी चीजें कंसिडर करी जाएंगी. और सबसे बड़ी बात कि ऑल दीज जो लेटेस्ट थेरेपीज हैं, दे आर ऑल एक्सपेंसिव. फोटोफोरेसिस एक तरह का पूवा थेरेपी है कि जिसमें फर्क ये होता है कि पूरी बॉडी को इरिटेट करने के बजाय सिर्फ लिम्फोसाइट्स को पूवा के साथ एक्सपोज किया जाता है, और वो लिम्फोसाइट जो पूवा से ट्रीट होते हैं वो एपोप्टोसिस के शिकार होकर मर जाते हैं. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. और इस जो कुछ मैंने आपको सेकंड फेज में ट्रीटमेंट के बारे में बताया, अगर उसके सिलसिले में कोई सवाल है तो मुझसे कर लीजिए. सर एक थोड़ा सा इससे अनरिलेटेड है, डॉक्टर फैजाबाद करी फैसलाबाद से. अनरिलेटेड है तो फिर क्यों कर रहे हो सवाल? सर सिर्फ हिस्टो से रिलेटेड है ना, इस वजह से काफी दिनों से माइंड में था. क्या चीज, क्या सवाल है? सवाल क्या है? सर मैक्रोहिस्टियोसाइट्स एक ही होते हैं? सर मैक्रोफेजेस और हिस्टियोसाइट्स एक होते हैं? यस यस यस. देखो, जिसका ओरिजिन है मोनोसाइट से, मोनोसाइट ही मैक्रोफेज बनते हैं, और मैक्रोफेजेस हिस्टोसाइट्स हैं जिनको मैक्रोफेजेस भी कहा जाता है. एक ही चीज है, एक ही चीज. ठीक है, बस सर यही क्वेश्चन था. सर ये टोटल स्किन इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी अवेलेबल है पाकिस्तान में? फ्रैंकली मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर होगी ना, मेरा ख्याल है कि ये हमारे CMH में है. ये ना बड़े रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के डिपार्टमेंट से वहां पे अवेलेबल हो, क्योंकि ये दोनों जो है ना, ये रेडियो ऑन्कोलॉजी की डोमेन में आती हैं. थैंक यू सर. MS के वाइवा में क्या क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जाते हैं? देखो, वाइवा में आपसे MF की स्टेज, वो तो मैंने आपसे कल भी कहा कि जब आपके पास एक MF का पेशेंट आया तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपने MF के पेशेंट की TNM क्लासिफिकेशन और स्टेजिंग एग्जामिनर के आगे रखनी है. अगर आपने स्टेजिंग नहीं की, अवेलेबल जो भी आपके पास क्लिनिकल एग्जामिनेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे, अगर आपने स्टेजिंग नहीं की तो मेरे हिसाब से आपने 10 to 20% नंबर लूज कर ली स्टेट में. तो आपको एक तो ये कि हिस्ट्री के साथ आपने जब एग्जामिनेशन करेंगे तो आप उसकी क्विक स्टेजिंग भी करें कि उस पेशेंट की स्टेज क्या है. आपसे एग्जामिनर स्टेज के बारे में सवाल पूछेगा अगर आपने नहीं किया होगा. आपसे एग्जामिनर उसके स्प्रेड के बारे में पूछेगा. आपसे एग्जामिनर पूछेगा वर्कअप कैसे करना है. आपसे ये पूछा जाएगा कि प्रोग्नोसिस कैसी है स्टेज वाइज उस डिजीज की, MF की. आपसे ये पूछा जाएगा कि मुख्तलिफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपके पास क्या हैं, जो डिपार्टमेंट में क्या है और वैसे रूटीन में कहाँ क्या है. तो मुख्तलिफ ट्रीटमेंट ऑप्शन के साथ उसकी मॉनिटरिंग कैसे करनी है, यही सवाल होंगे वाइवा में. डिफरेंशियल डायग्नोसिस होगा. सर अगर हमारे पास एरिथ्रोडर्मा में पेशेंट आए तो हम डायरेक्ट स्टेज T4 में ले जाएंगे? T4 ही स्टेज है? नहीं, स्टेज 3. स्टेज 3 TNM की T क्लासिफिकेशन में T4 है, लेकिन ये स्टेज 3 है. आपको पता है स्टेज 4 जो है ना, वो 4A वो है कि जिसमें आपके लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं, और 4B वो है कि जिसमें मेटास्टेसिस होता है लिवर, स्प्लीन और बाकी सिस्टम. तो जो एरिथ्रोडर्मिक फॉर्म है वो स्टेज 3 है. सर क्योंकि जो एरिथ्रोडर्मा में पेशेंट आता है उसकी लिम्फोडेनोपैथी, दोबारा बोलो. तो जो एरिथ्रोडर्मा में पेशेंट आता है उसकी जो है वो लिम्फोडेनोपैथी भी अक्सर हुई होती है. मुझे समझ नहीं आई, बात समझ नहीं आई क्या कहा आपने. जो पेशेंट एरिथ्रोडर्मा में आता है जो है लिम्फोडेनोपैथी भी हुई होती है. मैंने आपको कल डर्मेटोपैथिक लिम्फेडेनोपैथी के बारे में बताया था. आपने अटेंड किया था मेरी कल की टॉक? जी 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 सर. क्या होता है डर्मेटोपैथिक लिम्फेडेनोपैथी? तो ये आपने बताया कि लिम्फ नोड इनलार्जमेंट हो जाता है. और
सर लिम्फ नोड इनलार्जमेंट हो जाती है किसी भी जो है ना एरिथ्रोडर्मा में जैसे। और उस लिम्फ नोड्स के अंदर क्या मिलता है जो हम कहेंगे कि डर्मोपैथिक लिम्फेडेनोपैथी है? सर उसमें हिस्टियोसाइट स्किन के विद मेलानिन कंटेनिंग हिस्टियोसाइट मिलते हैं। ये वाली जो आपको मैंने बताया जो लिम्फेडेनोपैथी है एरिथ्रोडर्मा में, वो लिम्फेडेनोपैथी हर किस्म के एरिथ्रोडर्मा में हो सकती है, लेकिन सेज़ेरे सिंड्रोम के लिए आपके और क्राइटेरियाज हैं। एक तो ये कि मैंने बताया कि सेज़ेरे सिंड्रोम में there will be extreme degree of pruritus, leonine facies, palmoplantar keratoderma, hepatosplenomegaly, multiple regions of lymph nodes involved. और सिर्फ जो एबनॉर्मल लिम्फेडेनोपैथी है उसको नॉर्मल लिम्फेडेनोपैथी से डिफरेंशिएट ऐसे करें कि 1.5 सेंटीमीटर से छोटे साइज के लिम्फ नोड हैं तो वो एबनॉर्मल नहीं है। लिम्फ नोड शुड बी मोर देन 1.5 सेंटीमीटर इन साइज। जब वो बड़े साइज के लिम्फ नोड होंगे देन आप कहेंगे कि नाउ दीज आर द पैथोलॉजिकल लिम्फेडेनोपैथी। सर ये सारी परसेंटेजेस याद करनी होती है, ये मीडियन टाइम टू प्रोग्रेशन? क्या दोबारा बोलो? सर ये सारी जो आपने परसेंटेजेस बताई हैं डिफरेंट, ये सारी हम याद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ इस परसेंटेजेस को बताने का मकसद ये था कि कौन सी दवाई कितनी इफेक्टिव है। बिल्कुल इसको याद करने की जरूरत नहीं है, नॉट एट ऑल। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके जी। क्लासिफिकेशन में एक चीज होती है नोडल में 1A 1B, उसके आगे फर्दर मेंशन है कि क्लोन नेगेटिव एंड क्लोन पॉजिटिव। सर इसका क्या मतलब है? किसकी बात कर रहे हो? नोड्स की? सर जी सर नोडल में क्लासिफिकेशन में ना फर्दर उसने दिया होता है N1A 1B, सिमिलरली 2A 2B, और उसके आगे मेंशन होता है क्लोन नेगेटिव एंड क्लोन पॉजिटिव। उसका क्या मतलब तो आपको मैंने पहले ही बताया कि अगर एक लीनिएज की सेल है ना तो वो क्लोन पॉजिटिव है, अगर वो एक से डिफरेंट लीनिएज के हैं तो वो क्लोन नेगेटिव है। इसका मतलब है मोनोक्लोनलिटी नहीं है। अब मुझे ना आई एम सॉरी जो तुम मुझे कह रहे हो ना, ये मैंने पढ़ा नहीं, मैंने देखा नहीं, मैं इससे ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन क्लोन पॉजिटिव का मतलब है कि मोनोक्लोनल नेगेटिव का मतलब है कि पॉलीक्लोन। सर उसने ना डच क्लासिफिकेशन का जिक्र किया है लेकिन उसके बारे में बताया नहीं हुआ है। देखो उसके बारे में मेरी गुजारिश है कि जो मैंने आपको बताया इससे ज्यादा पढ़ने की प्लीज जरूरत नहीं है। ये भी आप याद कर लेना, बहुत बड़ी बात है। रुक इज अ टेक्स्ट बुक। रुक के अंदर हर किस्म की सर इलेक्ट्रॉन थेरेपी एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन बता दें। किससे क्या करें? सर इलेक्ट्रॉन बीम की वाइवा रिलेटेड क्वेश्चंस बता दें। मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले बताया, पता नहीं किस में थे ध्यान में। अभी मैंने आपको बताया कि एक तो आपके एग्जामिनेशन से मुतालिक सवाल करेंगे कि अगर आपने स्टेजिंग नहीं की तो आपसे स्टेज के बारे में एग्जामिनर पूछेगा, आपसे इसके सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट के बारे में एग्जामिनर पूछेगा, आपने इसकी वर्कअप के बारे में पूछेगा, आपने इसका वर्कअप कैसे करना है। वर्कअप के बाद आपसे ये पूछेगा कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। सारे जो स्किन डायरेक्ट थेरेपी कौन सी है, सिस्टेमिक थेरेपी कौन सी है, इम्यूनोथेरेपी कौन सी है, कौन सी ज्यादा इफेक्टिव है, किस स्टेज में दी जाएगी, कहाँ से मिलेगी, कौन सा सेंटर होगा, क्या उसकी मॉनिटरिंग होगी, क्या उसके साइड इफेक्ट्स होंगे। ये सारी बातें आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। इसके अलावा वेरिएंट्स पूछे जा सकते हैं, इसके अलावा डिफरेंशियल डायग्नोसिस उससे रिलेटेड जो भी हैं वो पूछे जा सकते हैं। फिर बात ये कि देखो एग्जामिनर के पास तो ऑप्शन है ना कि वो कहीं भी चला जाए, और बाज दफा जो कैंडिडेट्स हैं वो खुद फंस जाते हैं। आप पुआ के बारे में आपने कोई बोंगी मार दी तो आपको हो सकता है कि आपका 5 मिनट का वाइवा पुआ पे हो जाए या यूवीबी थेरेपी पे हो जाए। तो वो अगर हम सही जवाब देते रहें तो ये वाइवा 10-15 मिनट के अंदर खत्म हो सकता है। एग्जाम में ना कभी भी जवाब देने में ना एक्स्ट्रा बात नहीं करनी होगी। जो कोई आंसर है ना वो शॉर्ट एंड क्रिस्प होने चाहिए। जब आप लंबी लंबी कहानियां डालते हैं तो आप समझ लें एग्जामिनर भी फिर लंबी लंबी कहानियां डालना शुरू कर देते हैं, और वो जो वाइवा हो रहा होता है ना वो वाइवा 100% एक फेलियर का वाइवा हो रहा होता है। उस वाइवे में पास होने का कोई आंसर नहीं। जब आप सबसे एग्जामिनर
अनरिलेटेड सवाल करने शुरू हो जाए उस केस से, तो आप समझ लें कि पैकअप का टाइम हो गया। अब जो है ना आपका टाइम पास किया जा रहा है आपके साथ, वो आधा घंटा टाइम पास हो रहा है। बस सर अगर हमारे पास इनफिल्ट्रेटेड प्लाक्स हैं लॉन्ग केस में सर, लेकिन हमें पता ना चल रहा, हमसे डिफरेंशियल्स ही बना के फिर उसके बारे में हमारा सारा वाइवा होगा। ऑफ कोर्स यार, देखो ना बात ये कि आपने अपना काम पूरा करना है। आपने अगर एमएफ का सोचा है तो आपने तमाम लिम्फ नोड्स को अच्छे तरीके से एग्जामिन करना है। और मैं जितनी दफा मैं वाइवा लेता हूँ, मुझे ये लगता है कि आप लोगों में से अक्सर के लिम्फ नोड एग्जामिनेशन ही वीक है। आपको यही नहीं मालूम कि सर्वाइकल लिम्फ नोड्स आगे से करने हैं कि पीछे से करने हैं, एक्सिलरी लिम्फ नोड कौन सा राइट हाथ से करना है, कौन सा लेफ्ट हाथ से करना है। इतना शैबली आप लोग लिम्फ नोड्स करते हैं कि मुझे नहीं लगता कि एग्जाम की सेटिंग में आप लिम्फ नोड सही तरीके से पिक कर रहे हैं। तो लिम्फ नोड्स का एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज ऑल द मैलिग्नेंसीज आर कंसर्न। और फिर मैं इक्वली ये समझता हूं कि स्किन के जो ट्रेनीज हैं उनमें से तकरीबन 80 to 90% एब्डोमिनल एग्जामिनेशन भी ठीक नहीं करते। मतलब उनको लिवर का एग्जामिनेशन भी करना नहीं आता, उनको स्प्लीन का एग्जामिनेशन भी करना नहीं आता, वो टोटल की कार्रवाई कर रहे होते हैं। और टोटल की कार्रवाई ट्यूमर या सीटीसीएल में नहीं चलेगी। अगर आपने टोटल की कार्रवाई की और आपने मिस की विस्रोमेगैली और आपने मिस की कोई लिम्फ नोड, तो मेरे हिसाब से एग्जामिनेशन आपका फेल हो गया। फिर आप अपने नंबर कुछ गेन कर सकते हैं वाइवे में, वो बात की बात, लेकिन एग्जामिनेशन में तो मारे गए। तो प्लीज अपने एग्जामिनेशंस इंप्रूव करें, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन इंप्रूव करें, एक दूसरे को देख के पढ़ के जो मेथड्स की किताबें हैं। लिवर का एग्जामिनेशन प्लीज इंप्रूव करें। यू आर ऑल पैथेटिक इन लिवर एग्जामिनेशन। सच कह रहा हूँ, पैथेटिक का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्यों आप लोग नहीं करते ये काम? क्योंकि हमें तो आदत ही नहीं है एज अ स्किन स्पेशलिस्ट मरीज को हाथ लगाने की। हमारे तो कई ऐसे लोग कंसल्टेंट हैं जो 3-3 फुट के ना सेफ डिस्टेंस आज से नहीं हमेशा से मेंटेन किया हुआ है मरीज का और अपना, तो जो सेफ डिस्टेंस जो हम आजकल कोरोना में मेंटेन कर रहे हैं कि करीब ना आए मरीज। तो इसलिए ना प्लीज मरीजों को एग्जाम के लिए हाथ लगाएं, एग्जामिनेशंस करें, ताकि एग्जाम में नजर आ जाता है कि जो बंदा पेशेंट को टच किया होता है और जिस बंदे ने सिर्फ 15-20 दिन पहले तैयारी शुरू की होगी। और हर चीज में चल जाएगा, सोराइसिस में निकल जाएगा, शायद बुलस डिसऑर्डर में निकल जाए वो एग्जामिनेशन, लेकिन सीटीसीएल में नहीं निकले। वहां पे आपको क्लियर एंड क्रिस्प ये दोनों सिस्टम्स बहुत अच्छे करने हैं, वरना स्टेजिंग खराब हो जाएगी सारी की सारी और मैनेजमेंट खराब हो जाएगी पेशेंट। ठीक है, ठीक है, ज्यादा डांट तो नहीं पड़ गई? नहीं सर, जरूरी ये बहुत जरूरी है। प्लीज आप लोगों को कह रहा हूँ एब्डोमिनल, लिवर और स्प्लीन एग्जामिनेशन अच्छा करें और लिम्फ नोड एग्जामिनेशन अच्छा करें। दो बहुत वीक एरियाज हैं। देखें, ऑस्कल्टेशन आप कैसे कर रहे हैं मैं नहीं पहचान सकता, मैं सिर्फ आपकी ऊपर की परफॉर्मेंस देख रहा हूँ, आप क्या निकाल रहे हैं क्या नहीं निकाल रहे। लेकिन मैं ये देख सकता हूँ कि आप जिस तरीके से लिवर कर रहे हैं, आपको लिवर मिलेगा या नहीं मिलेगा, या स्प्लीन मिलेगी या नहीं मिलेगी, या लिम्फ नोड मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये एग्जामिनर पहचान सकता है। तो इसलिए ये ऐसा एग्जामिनेशन है कि जिसकी वैल्यू स्किन में भी बहुत ज्यादा है और इम्पॉर्टेंट है, और सही अपने सिस्टम्स अच्छे करें, खास तौर पे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन और लिम्फ नोड्स। तो इस नोट के ऊपर इंशाल्लाह खत्म कर रहा हूं, और कल डर्मेटोपैथोलॉजी का टॉपिक लेक्चर होगा। उसके बाद हम थोड़ा गैप करेंगे ईद पे, और उसके बाद फिर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि अगला लेक्चर कब होगा। तो कल डर्मेटोपैथ का लेक्चर इसी टाइम पे इंशाल्लाह। तो हैव अ गुड नाइट और थैंक यू वेरी मच।